چھوٹی عمر میں بڑا دھماکہ. چھوٹا تھا بالکل زیرو سے. زیرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ آپ کا گھر ہو، نہ کام ہو، نہ سونے کے لیے جگہ ہو. یہ سوچ آپ کے مائنڈ میں کہاں سے آئی کہ میری رگوں میں بزنس ہے؟ کیونکہ 10 سال کی عمر کا تھا جب میں 120 بندوں کو ہینڈل کرتا تھا پاکستان. میرے چاچو ہیں ملک ساگر صاحب جی، میری شیف وغیرہ کروائی جاتی تھی. ابھی بھی چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. سروس موبائل ریپیئرنگ کی بار ہے، ڈسکو بار کے، فاسٹ فوڈ کی، مچھلریا یعنی حلال گوشت اور سپر مارکیٹ ہے. ایک رومانیہ کے اندر میری 2 کمپنی اس ٹائم رن کر رہی ہیں. ایک جو گوشت پروڈکٹ کر رہی ہے جو اسی مراحل کے اندر ہے پچھلے 2 سال سے، اور ایک ہماری ہے ایک کمپنی جو سپر مارکیٹس ہیں ان کو بندے سپلائی کرتی ہے. بھائی ہیں ملک ساجد صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں عادی ملک صاحب ہیں، چھوٹے ہیں. ریشن کے لاز کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. ابھی دسمبر میں فلوسی کھل رہی ہے. 10 سال سے ایز اے ٹرانسلیٹر تریبونالے کے اندر، کستورے کے اندر، کمونے کے اندر، تو فی سبیل اللہ. موقع تے جڑا ہے انہوں ریپیئر کرنے ہیں اور کسی بھی برانڈ کی ہو بڑے اچھے طریقے اور پروفیشنل طریقے دے نال. بیسک سیمسنگ ہے، آئی فون ہے، ڈفرینٹ کمپنیز کے فونز ہیں، ہواوے کے بھی ہیں، اور اکنامی کی پرائس ہیں ان کی زیادہ ہائی نہیں ہے تاکہ کسٹمر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رکھے ہوئے. میں اپنے دوستوں کہ بھی میں 2014 کے اینڈ تو سٹارٹ کیتا ہے، تو اگر ایک بندہ 2014 تو سٹارٹ کر کے اللہ کی رحمت ہے اتنے تک پہنچے ہیں کہ تسی بغیر انلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے تسی پیسہ کما سکتے ہو اگر تسی محنت کرتے ہو. ہاں یہ میری والدین دی دعاواں، میری خاص طور پہ میری دادی دی دعاواں، یہ میں کہنا سارا کچھ ہے، لیکن اس تو بعد جڑا کریڈٹ ہے وہ پائیاں دا ہے. میں اپنے چھوٹے بھائی تو تے چھوٹا میرے تو وڈا جیڑا وے اسی ایک دوسرے تو لیوا بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور یونٹی جیڑی ہے وہ ایتھے سانو اج لے کے آئی ہے، ورنہ میں نہیں سمجھدا بھی اسی اس جگہ تے پہنچ سکنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زاہزمان، اور آج کا جو خصوصی پروگرام ہے، آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ورونا کی بزنس مین شخصیت، کاروباری شخصیت، چھوٹی عمر میں بڑا دھماکہ یعنی کہ کم عمر میں ترقی کی منازل طے کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے معزز مہمان جناب ملک عابد علی صاحب،
इनको हम अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम है, इस हवाले से जो हम आज पहला स्टार्ट ले रहे हैं, इन्हीं से ले रहे हैं, वरोना से ले रहे हैं, और इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसे इन्होंने तरक्की की मनाज़िल तय की और किस तरह आगे बढ़ते बढ़ते कितने अरसे में जो है वो इस रुतबे पे पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, बताइएगा कि आपका जो जर्नी है यूरोप में, वरोना में, ये कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? सर बेसिकली तो मैं फर्स्ट सिटी है वेरोना। जब वो पहली दफ़ा जब मैं इटली में आया तो तब तो मेरी उम्र 18 साल भी नहीं थी, छोटा था बिल्कुल। तो वेरोना से स्टार्ट किया है और वापस अभी मैं वेरोना में हूँ। और इससे वेरोना में आके उसके बाद फिर मैं यहाँ से विचेंजा गया, वेनेजिया गया कारोबारी सिलसिले में। उसके बाद फिर बार्सिलोना रहा, यानी कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर उधर किया, लेकिन वापस जो मज़ा वेरोना के अंदर था वो कहीं नहीं मिला। तो इसलिए वापस फिर वेरोना में आके मैंने रीस्टार्ट लिया, और रीस्टार्ट लिया ज़ीरो से। ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास ना आपका घर हो, ना काम हो, ना क्या सोने के लिए जगह हो, बिल्कुल ज़ीरो से। जैसे वो कहते हैं ना रोड से स्टार्ट लेते हैं, वो रोड से स्टार्ट लिया 2014 के अक्टूबर से। और हम माशाल्लाह 3 भाई हैं, और हमारा शुरू से यही कंसेप्ट रहा है कि वो चीज़, वो सर्विस, वो कुछ लाएं जो इससे पहले किसी ने ना किया हो, जो किसी ने पहले ना दिया हो। तो हम 2014 को तकरीबन आज से 9-10 साल पहले वेरोना से हमने स्टार्ट लिया मोबाइल रिपेयरिंग का काम। क्योंकि जब इधर कोई भी अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए जाता था तो इटालियन शॉप्स थी 2-3 वेरोना के अंदर। अभी माशाल्लाह को 150 शॉप है इधर। तो कोने कोने सारी आपकी हैं? नहीं सर। तो इधर 1-1.5 माह बाद आपको मोबाइल मिलता था। तो हमने इधर एक नई चीज़ यूनिक लेके आए कि यार हमारे पास अपना मोबाइल लेके आओ, आधे घंटे के अंदर हम आपको उसकी रिपेयर करके देंगे। और ये चीज़ इटालियंस, वो ख़ासतौर पे वेरोनेज़ी, वो किसी पे इतना वो इत्मीनान नहीं करते, वो बहुत क्लोज माइंड के हैं। तो वो फ़ोन करके पूछते थे ऐसे कैसे हो सकते आधे घंटे में। मैं बोलता हूँ आप आओ, आप आधा घंटा इधर बैठो, जो भी रिप्लेसमेंट का काम है 90% जो काम है बेसिकली रिप्लेसमेंट के आते हैं, वो हमने बोला हम आधे घंटे में करके देंगे। और वहाँ से हमारा वो जो सफ़र है वो शुरू हुआ। फिर जो हमारा लोगो है, जो हमारी कंपनी का नेम है टेक सर्विस सेंटर, हमें बेसिकली हमने इसे रजिस्टर्ड किया है। और हमारी कंपनी फिर माशाल्लाह वेरोना, उसके बाद हम सान बोनीफाcio में हैं, वेनेजिया के अंदर है। माशाल्लाह हमारी 3 शॉप्स हैं मोबाइल रिपेयरिंग की। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इटली के अंदर हम हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि हम 95-97% कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारा 20-25 इटालियंस, ओवरसीज़ और दूसरे मुल्क यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों से जो हैं क्या बोलते हैं टेक्निकल जो मैकेनिक हैं इसके, जो मोबाइल रिपेयर के हैं, वो है हमारा स्टाफ है माशाल्लाह। और स्टार्ट हमारा मोबाइल रिपेयरिंग से हुआ। अच्छा मलिक साहब, आप मोबाइल रिपेयरिंग से स्टार्ट करते करते, जैसे आपने बताया कि आप 18 साल की भी उम्र नहीं थी आपकी, तो आप बिजनेस के सिलसिले में घूमते रहे मुल्कों मुल्कों, शहरों शहरों। ये सोच आपके माइंड में कहाँ से आई कि आपने करने कारोबार? देखिए जी, बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है, हम पाकिस्तान के अंदर मेरे दादाजी वो हैं जो 1975 में उनके पास वो गाड़ी थी जो सामने से स्टार्ट होती है, हमारे पैदा होने से पहले। तो बेसिकली कौन से इलाके से? बुरे वाला सर, बुरे वाला हमारा सिटी है जी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी रघुमय बिजनेस है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस अभी भी उनका चल रहा है। और मैं 15 साल की उम्र का था जब मैं 120 बंदों को हैंडल करता था पाकिस्तान, मेरे चाचू के साथ हमारी। तो क्या वजह बनी मलिक साहब, 15 साल की उम्र में आप 120 लोगों को हैंडल करते थे तो आपको पाकिस्तान से यूरोप आना पड़ा? देखिए जी, पहले तो मैं आज इसी तवज्जुह से
میں شکر گزار ہوں میرے چاچو ہیں ملک ساگر صاحب جی. میں آج جو کچھ بھی ہوں, اگر وہ میرے لیے ایفرٹ نہ کرتے, وہ مجھے وہاں سے نہ لے کے آتے, اور شاید آپ اور میں ادھر نہ بیٹھے ہوتے. جو بھی سارا کریڈٹ میں آج آپ کے توسط سے انہیں دینا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا. وہاں سے وہ لیگل طریقے سے میں ورک پرمٹ پہ آیا تھا, ایج نہیں تھی میری, شیو وغیرہ کروائی جاتی تھی, تو وہ چاچو تھے میرے. اچھا زبردست. اچھا ملک صاحب بتائیے گا, آپ بتا رہے ہیں 2014 سے آپ نے اسٹارٹ دوبارہ سے لیا اور یہاں سے ابھی اسٹیبلش ہوئے. میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلش کس لیول کے ہوئے ہیں یہ. آج ہم نے آپ کے ساتھ ناشتہ کیا جو کہ میں گھر سے کر کے آیا تھا, لیکن آپ کی مہمان نوازی تھی. وہ ایک کلچر دیکھنے کو ملا کہ آپ نے نیچے فرش پہ چٹائی لگا کے تو اہتمام کیا. وہ بھی ہم ویور کو دکھائیں گے کہ آپ کی مہمان نوازی اس میں کیا وجوہات ہیں کہ آپ اتنے یعنی کہ لیول پہ جا کے ابھی بھی چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. دیکھو سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا نبی پاک کی سنت ہے, نیچے بیٹھ کے کھانا. اور اس میں آپ اس چیز اور ایڈ کر لیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں اس سے اور بھی 10 گنا آگے جاؤں, لیکن میں نے اپنے وہ جو ماضی ہے, اپنی وہ جو پہچان ہے, یا وہ اپنی کیا بولتے ہیں, میرا بیسیکلی تعلق ایک گاؤں سے ہے, تو میں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہتا. اور ثقافت ہے آپ جی, وہ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے زمین پہ سونا بہت پسند کرتا ہوں, صحیح ہے, تو اور کوشش کی ہے ایک تھوڑا سا مٹ کے رہنے کی. تو وہی چیز ہمارے گھر کے اندر ہے, وہی چیزیں ہیں کہ یار نہیں وہ تھوڑا سا دیسی اور دیسی ماحول جو بولتے ہیں وہ چیزیں. جی جی. اچھا ملک صاحب, آپ اب ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2014 سے اب تک کیا جو ہے امپرومنٹ کی اور آپ کا کون کون سا کاروبار ہے؟ جی 2014 سے ہم نے بیسیکلی سٹارٹ کیا ٹیک سروس اور موبائل ریپیئرنگز کی. وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا, 1 بنائی, پھر 2 بنائی, پھر 3 بنائی, 1 4 چوتھی پھر وہ چندر کمار چالے کے اندر وہ وہاں سے ہم نے ختم کر دی. اس کے بعد میرا کوپراتیوا رہا ہے, اور کوپراتیوا نکلا جب میں پاکستان گیا تو بہت غربت تھی, تو میں نے سوچا یار کوئی ایسا ایفرٹ ہو کہ اپنے پاکستانی کو کام کیا جائے. تو میں نے ادھر آ کر تقریباً 270 بندے تھے جو اس کے اندر کام کرتے تھے, اور موسٹلی سارے پاکستانی تھے. پھر وہ کووڈ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا, تو ابھی ہمارے پاس ایک کہہ لیں ڈسکو بار کہہ لیں وہ ہے, اور میں واحد پاکستانی ہوں جس نے پیاسا برا کے اندر فاسٹ فوڈ کی شاپ یا کوئی بھی ایسا تیتا ہے جو چندر اسٹوری کو برونا کے اندر ہے. ہمارے پاس ابھی مچھلریا یعنی کہ حلال گوشت اور سپر مارکیٹ ہے ایک, یہ اٹلی کے اندر ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو میں آن لائن نہیں بتا سکتا, جو سائڈ بزنس اسے بولتے ہیں, ایسی چیزیں بول رہے ہیں, ایسا کوئی بات نہیں. وہ سننے میں آیا کہ آپ کا رومانیہ میں بھی کوئی بزنس ہے. رومانیہ کے اندر میری 2 کمپنی اس ٹائم رن کر رہی ہیں, ایک جو گوشت پروڈکٹ کر رہی ہے جو اسی مراحل کے اندر ہے پچھلے 2 سال سے, اور ایک ہماری ہے ایک کمپنی جو سپر مارکیٹس ہیں ان کو بندے سپلائی کرتی ہیں. زبردست. جی ملک صاحب, یہ جو آپ نے بتائے 8-10 بزنس بتائے آپ نے, یہ آپ اکیلے ہینڈل کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی بازو بھی ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی, میں ادھر جو بیٹھا ہوں اسکرین پہ تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو بیٹھے ہیں میرے خیال سے ساری ایفرٹ ان کی ہیں. میرے بھائی ہیں ملک ساجد صاحب, میرے بڑے بھائی ہیں عادی ملک صاحب ہیں, چھوٹے ہیں, ہم 3 بھائی ہیں, اور میں ہمیشہ یہ بول رہا ہوں کہ میں ان کے بغیر کچھ نہیں ہوں, ہمیشہ سے میں نے یہ بولا ہے, اور یہ سارا کچھ ان سب بھائیوں کی مل کے جو ایفرٹ ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. اچھا ملک صاحب, ایک چیز تو آپ حذف کر کے کہ آپ امیگریشن کے لاز کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. ابھی دسمبر میں فلوسی کھل رہی ہے جی, اس پہ بھی آپ نے کچھ اسٹڈی کی ہے, کچھ کام کیا ہے, وہ ہمارے ویورز کو بتائیے
ताकि वो जालसाजी से बच सकें? देखें, बेसिकली मैं पिछले 10 साल से एज ए ट्रांसलेटर त्रिबुनाले के अंदर, कस्तूरे के अंदर, कमोने के अंदर, और जो वरोना के अंदर दोस्त हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोशिश की है सबका अच्छा करने की और सबके काम आने की। और बड़ी बात फ़ी सबीलिल्लाह, जहाँ वकील यहाँ से 500, 1000, 2000 मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र है जिनका करवाया, अगर वो देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि फ़ी सबीलिल्लाह किया उनका। और शौक़ था, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उनको बहुत बुरे तरीके से इधर हैंडल किया जाता था, तो इसी सिलसिले में शौक़ ये आया कि यार इमिग्रेशन, या इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुझे अच्छे तरीके से आना चाहिए। जहाँ तक तल्लक है इमिग्रेशन, जो फलूसी डिक्रेट तो 2023 है, वो उसका आगाज़ हो चुका है, सबमिशन हो रही हैं। तो जो चीज़ मैंने आपके तबस्सुम से आप बताने लगा हूँ, आज तक इटली की तारीख में कोई बंदा किसी को नहीं बताता, क्योंकि इसका जब फलूसी खुलती हैं तो बहुत सारे दोस्त रोज़गार वो स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोस्तों का अवेयरनेस दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लाइक, अगर मैं आपके पास जाता हूँ, यार मेरा एक भाई है, मेरा एक भतीजा है, जो भी है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो आपके साथ यही तय होगा, जो ले दे के करते हैं, हमारा टॉपिक किसी को नहीं हिट करना, यही पूछते हैं यार इतने ले लो उतने ले लो। और लेकिन जो इस साल से काम स्टार्ट हुआ है, पेपर उसको मिलेंगे जिसका दीता, जो कंपनी वेल एंड सेट, यानी कि 100% रेगुलर है। तो मैं सबको ये बता रहा हूँ यार, पैसों की बात ज़रूर करो, लेकिन उस बंदे से ये पूछो जिस कंपनी पे करवा रहे हो वो इस लिस्ट के अंदर भी है या नहीं है, इस कंपनी ने टैक्स पे किए भी हैं या नहीं किए हैं, इस बंदे के पास अभी वर्कर हैं या इसने नई कंपनी खोल के आपके पेपर जमा करवा दिए। बाद में ठीक है, हमारा है अल्लाह तवक्कल, हम जमा करवा दें, फिर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ज़रूर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सेंस दी है, हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरा मानना है, और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें पूछ लें अगले बंदे से जो पेपर जमा करवा रहे हैं, तो 5% पेपर जमा हो। अगर 50,000 फाइल जमा होती है तो सिर्फ 5,000 फाइल जमा हो, क्योंकि आप भी इधर रह रहे हैं काफ़ी सालों से, मैं और वो 5,000 के 5,000 ही निकलेंगे। ये नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि आपने जमा कराए, भाई ने उसी दिन काम छोड़ के बैठ जाना, मेरे तो पेपर जमा हो गए, मैंने तो बाहर चला जाना। रियलिटी आपने किसी उस बंदे को दे दी है जिसने 200, 300, 400 के लिए, अपने के लिए, या आपसे 2-3 हज़ार यूरो ले लेने हैं, 8-6 माह उसको यूज़ करके उसके बाद मैंने अल्लाह का हुक्म यार निकले नहीं है, वो निकलने कहाँ थे? अगर आप उससे यही पूछते यार, किसी को 200, 400, 500 हज़ार ज़्यादा दे लो, लेकिन उसको टेबल पे रखो यार, इधर लाओ इसका दूर, लाओ इसके डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ कि ये वाकई कंपनी इस काबिल है कि ये किसी की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकती है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि इमिग्रेशन की बात चली है, जो अभी फलूसी खुली है, इसमें जो रद्द तो है, जो अप्लाई करने का तरीकाकार है, उसमें कितना खुद चाहिए, उसकी जो कैटेगरी क्या है, फैमिली के साथ है, अकेला है, कितना उसका जो है ना वो खुद हो तो फिर वो अप्लाई करे, अदरवाइज वो ना करे, जो इधर भी कर रहे हैं जी। अगर पहले स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक से, जो डोमेस्टिक के अंदर है उनके लिए 30,000 का खुद चाहिए, 20,000, 20,000 का उसके लिए खुद चाहिए, सिंगल पर्सन का जो इधर है। अगर हाँ जी, अगर आपके स्टातो दी फैमिलिया के अंदर आपके बच्चे हैं, भाई है, कोई भी बंदा है, अपना जाके चेक करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं आपके साथ आया हूँ ना, तो मैंने घर के अंदर आपका रेजिडेंस बनवाया, आपने ये नहीं उधर बताया, कोई भी नहीं बताता मैक्सिमम, जो मेरे इल्म तक आपका मेरे साथ ही रेजिडेंस बन गया, मैं आपकी स्टातो दी फैमिलिया के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। वो चेक करें अपना, पहले अप्लाई करने से पहले स्टातो दी फैमिलिया निकालें। अगर आपके बच्चे इधर हैं तब भी, अगर पाकिस्तान है तो फिर भी वो आपके साथ अटैच होंगे। अगर आप अकेले हैं 20,000 यूरो, अगर आपके साथ कोई आपका फैमिली मेम्बर है तो 27,000 यूरो। इसमें एक चीज़ और उन्होंने ये ऐड की है, अगर आप मेरे भाई हैं, सेकोंडो ग्राल तक भाई हैं, भतीजे जो भी हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं भी रह रहे, मेरे साथ मेरे स्टातो फैमिली सेम मकान के अंदर नहीं भी रह रहे, तब भी मैं आपका वो तो अपने साथ मिला के इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए और मौलाना साहब, ये जो कुछ लोग, क्योंकि अभी इमिग्रेशन चल रही है और काफ़ी लोगों ने
अपनी फैमिली अप्लाई की हुई हैं, लोगों के नुले उस्ते वगैरह आए हुए हैं, निकले हुए हैं, पीछे एम्बेसी में जमा हैं, लेकिन फैमिली यहाँ पे नहीं है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? 27,000 में आएंगे या 20,000 में आएंगे? वो सर जब तक इधर आते उनका रेजिडेंस नहीं बनता वो 20,000 के अंदर ही आएंगे। वो अभी तक उनके साथ, हाँ अगर वो उनके कारी को हैं, वो बूझते पागे के अंदर उन्होंने इन कारी को लिए हुए हैं तो फिर वो पाकिस्तान भी हैं तो वो उनको 27,000 चाहिए। अगर मैंने जस्ट अपनी वाइफ का अप्लाई किया है, अभी वो उधर उनका प्रोसेस चल रहा है, वो मेरी इंकारी को नहीं है तो फिर वो 20,000 का ही चलेगा। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन प्रोफेचूरे पे, क्योंकि कुछ केसेस कुछ शिक्की ऐसी होती हैं वो मुतलका प्रोफेचूरा उसको हैंडल करता है। अच्छा मतलब साहब, कहा जाता है कि 90% लोग यही समझते हैं कि जो यूरोप में रह के रातों रात अमीर बन जाए या बहुत जल्दी जो है वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़े, तो वो किसी के कंधे पे किसी मजदूर की मजदूरी खा के किसी का हक मार के तो फिर ही आगे आ सकता है। आपने इसमें आप बताएं कि क्या आप इस तरह की काविश में नहीं। इंटरेस्टेड हैं? मैं सर इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि 90% हमारे जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो उनका वो मिडिल क्लास या मिडिल से लो क्लास होते हैं, क्योंकि वो इतना अमीर बंदा तो कोई इधर आता नहीं है, ठीक है। अगर वो इतना अमीर है तो वो पाकिस्तान गए। तो हर बंदे की कोशिश होती है शॉर्टकट ले और जल्दी से जल्दी पैसा कमाए, सारा कुछ भूल जाते हैं ये गलत क्या है ये सही क्या है। लेकिन मैं उनके सामने एक छोटी सी मिसाल हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं समझता पता नहीं क्या, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप इधर आके लीगल तरीके से भी, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बोल सकता हूँ मेरी 6 कंपनीज अभी इटली के अंदर काम कर रही हैं, एक भी डेबिट नहीं है। और माशाल्लाह मेरे पास 30 से 35 बंदों का स्टाफ है। जो बंदे इटली में रहते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, इतने स्टाफ को हैंडल करना, उसके सारे टैक्सेस पे करने आसान नहीं है। मेरी 6 कंपनी में से एक भी ऐसी नहीं है कोई डिफ़ॉल्ट हो। रेगुलर टैक्स दे के और मेहनत करके और नेक नीति से, बगैर शॉर्टकट ढूंढे। मैं हल्फन कह सकता हूँ मुझे बहुत सारे शॉर्टकट मिले हैं, लेकिन मैं प्राउड करता हूँ मेरे वालिदैन जो उन्होंने तरबियत की है कि बेटा गलत रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो आगे से आपको बंद ही मिलेगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी भी शॉर्टकट को लूँ। अल्लाह की इतनी रहमत है, हम भाइयों का प्यार है, ख़ास तौर पे मेरी दादो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, बहुत एक मेरे ख्याल से वली थी, उनकी 108 साल 10 साल उम्र थी, तो उनकी बहुत सारी दुआएं हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि मैं वज़ू करके शॉप पे खड़ा होता था जब मैंने मोबाइल्स का काम शुरू किया, वज़ू करके खड़ा होता था कि झूठ ना बोलो और हलाल रोज़ी कमा के, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। और मैं ऑन द रिकॉर्ड ये भी बात कर रहा हूँ, वेरोना प्रोविंचा या इधर इटली के अंदर कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि मलिक ब्रादरान ने आबी साजी या आदि ने 1 रुपया भी मेरा देना है। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा है कि आपकी मुख्तलिफ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि वो तो एक बिजनेस अलग से हो गया, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ आप बना रहे हैं, आपका रख रखाव, आपका हल्का बाप काफ़ी वसी है। तो मेरे सुनने में आया कि वो आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो पाकिस्तान से, जैसे आपने कहा कि ज़ीरो से शुरू किया है, वो ज़ीरो से शुरू करने वालों के लिए ले रहे हैं कि चलो किसी का 2 माह, किसी के 4 माह, किसी का 6 माह निकलवा दें तो उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो खुद जो है ना अपना सर्कल चला रहेगा। क्या ऐसी बात है कि ये रूमर्स ही हैं? नहीं सर, ऐसी बिल्कुल ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले तो हमारा जो माइंड सेटअप है कि जितना पैसा हम कमा रहे हैं कोशिश करें इधर इन्वेस्ट करके, पीछे है ठीक है जो भी है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि अगर कोई चीज़ एक रेंट पे है तो उसका रेंट देने की बजाय उससे बाय कर लें, क्योंकि वो आपका सर्कुलेट या बिजनेस वर्थ आपका वो बढ़ता जाता है। जिस तरफ आप ला रहे हैं रिसेंटली, हाँ मैंने ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि यार किसी की कुछ हेल्प हो जाए, किसी को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, और बहुत बड़ा सेटअप कह लें आप, जो नए आएंगे ख़ास तौर पे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अच्छा मलिक साहब, आप ने बिजनेस भी कर लिया, उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, आप भलाई का भी सोच रहे हैं,
मैंने सुना है आप कुछ सियासत में भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, कुछ आपका शुगर उस तरफ भी ध्यान जा रहा है, क्या इसमें किस तरफ आप जा रहे हैं? नहीं सर, बेसिकली सियासत जो ना को मेरा प्लान है, ना मैं सियासत में जाना चाहता हूँ बिल्कुल। मेरे कुछ दोस्त हैं सियासी हैं और मुझे पता चला कोई नून लीग का कोई आप दफ्तर वगैरह भी बना रहे हैं। नहीं देखें सर, देखें अल्लाह ताला की मेरे पे रहमत है। अगर आप बोलते हैं मेरे पास 2 घर हैं या 3 घर हैं, आप बोलते हैं आबिद भाई यार ये छोटा सा सेटअप है, नीचे वाला फ्लोर आप मुझे दे दें या हम इधर नून का बनाएंगे, ऊपर वाला अगर कल को आएंगे ना पीटीआई वाले भी, यही 2 फेमस हैं इटली के अंदर, वो भी मांगे मैं उनको भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये और आपके तवज्जो से ये भी उनको मैसेज है, अगर वेरोना के अंदर बेशक के अंदर अगर वो मेरी कोई एफर्ट, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए जो मेरी हेल्प चाहिए, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब है नीचे दफ्तर होगा नून लीग का, ऊपर दफ्तर होगा पीटीआई का, और यहाँ पे मिल के जो है ना वो अपना तंजीमी माहौल चलाएंगे। सर बेसिकली मैं सियासत से बिल्कुल बाहर हूँ। अच्छा, लेकिन रिपीट करूँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, अगर दूसरी साइड पर कुछ दोस्त हैं तो उनके साथ भी खड़ा हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट और हमारा माइंडसेट अब सियासी नहीं। यानी कि आपका मानना क्लियर है कि हमने काम करना है और लोगों की भलाई के लिए करना है। अगर उसमें कोई सियासी दोस्त यानी कि दोस्त ज़्यादा है, किसी भी पार्टी से एफिलिएशन होती है तो वो भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपका काम है आगे बढ़ना। हर बंदे को वेलकम है सर। जी बिल्कुल व्यूवर्स, हमने आज अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोग्राम में, इवेंट में जो है आज आपसे मुलाकात करवाई है वरोना की एक कामयाब कारोबारी शख्सियत मलक आबिद अली साहब, और उनके पीछे जो जिन लोगों के हाथ हैं वो भी उनके भाई हैं। मलक साजिद अली उनके बड़े भाई हैं और मलक आदिल अली उनके छोटे भाई हैं। इनका कहना है कि वो सब मिल के एक स्टैंड पे, एक वो कहते हैं कि एक लाइन पे हैं सारे, तो उस हवाले से मिल के आगे बढ़े हैं, तो जो कि खुश आइंद बात है। हमारा कल्चर भी यही कहता है कि मिल के आगे बढ़ना चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और चीज़ दिखा रहे हैं, इनके साथ हमने नाश्ता किया वो आपको दिखाया, और बाकी जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाबी और तरक्की की मंजिलें तय करते जाएंगे, हम गाहे बगाहे इनके साथ टच में रहेंगे और आप तक ये सारी जो है एक्टिविटीज़ पहुँचाएंगे, ताकि आप में भी आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा पैदा हो और छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करने का एक हौसला बुलंद हो। मलक ज़ाहिद मान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।